یہ کوئی شادی بیاہ نہیں ہے بلکہ جشن کا سما ہے۔ آج جو ہے ڈی اے خان کے اندر 2 نیبرہڈ اور 3 جو ہے ولیج کونسل کے اوپر انتخابات ہوئے ہیں۔ 2 بار مجھے کہیں سے کالیں کروائی گئی ہیں کہ آپ لوگ ناظم ہیں اور آپ اس میں انٹرفیئر نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو وہ جو نام نہاد پی ایس بنے ہوئے ہیں گلزمان صاحب، ان کو نہیں چاہیے تھے کہ وہ ہرگز کہ وہ کسی بھی علاقائی سیاست میں دخل اندازی کریں۔ سب دوستوں نے محنت کی ہے جی، ٹھیک ہے، ایک ہمارے چھوٹے بچے سے لے کر نا بزرگوں تک۔ کبھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ لوٹے ہیں، کبھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ بک گئے تھے۔ کوئی ویگو ڈالوں پر بک جاتا تو کسی کو کہا گیا کہ ہم 5-5 لاکھ کا ووٹ بھی لے سکتے ہیں۔ جیتوں ہاروں کام کروں گا اور کام کرنے کا شوق ہے اور کام کرتا رہوں گا۔ یہ پلمبر کا کام کرتا ہے۔ آج جس نے ویگو ڈالوں کو نام نہاد پی ایس گلزمان صاحب کو جس طریقے سے شکست دی، ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے، اور جو سرکار سے لینا ہوگا وہ سرکار سے لیں گے۔ ان کی اس ڈلٹی اور غلیظ سیاست میں وہ زوردار تماچا ہے کہ یہ اگلی بار بہت بار سوچ کر آئیں گے یہاں پر۔ انتہائی غریب طبقے سے ہے، لیکن آج انہوں نے جو ووٹ لیا ہے یہ صرف علی امین گنڈا پور کا، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو میں گیا تھا، یہ ایک پاؤں سے یہ چل نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یہ پمفلٹ بانٹ رہا تھا ادھر۔ کہ ہم نے عوام کو کس طریقے سے جھانسے، دھوکے اور پیسوں کی سیاست اور ویگو ڈالوں کی سیاست دکھائی ہے۔ آج سائیکل چنچی والے ہار پہن کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایک غریب کو اٹھا کے زمین سے آسمان پر بٹھایا۔ میری طرف سے آپ لوگ کو یہ بہت بڑی وارننگ ہے، اگلی بار کسی اچھے استاد سے سیکھ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عادل وقار۔ اس بیک سائڈ پہ میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جشن، یہ کوئی شادی بیاہ نہیں ہے بلکہ جشن کا سما ہے۔ آج جو ہے ڈی اے خان کے اندر 2 نیبرہڈ اور 3 جو ہے ولیج کونسل کے اوپر انتخابات ہوئے ہیں، اور جو دونوں حریف پارٹیاں ہیں وہ بھی تحریک انصاف سے ہی ان کا تعلق ہے۔ یوتھ کونسلر پہ جو ہے محمد بلال جو ہے کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ کسان کونسلر جو ہے وہ محمد اسلم صاحب ہیں۔ یہ جو 2 میرے ساتھ پینل ٹھہرے ہوئے یہاں پہ، ایک محمد عدنان گنڈا پور کا پینل تھا جو کہ اس وقت وہ ہار چکا ہے، اور یہاں پہ جانسیب کا جو ایک گروپ ہے پینل جو کہ اس وقت جشن بھی منا رہا ہے۔ آج ہمارے جو سیاسی ماحول تھا، تو میری طرف سے تو مجھے یہ کہا گیا 2 بار مجھے کہیں سے کالیں کروائی گئی ہیں کہ آپ لوگ ناظم ہیں اور آپ اس میں انٹرفیئر نہ کریں، تو آپ جو ہے نا اس الیکشن میں جو ہے نا اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں میرے علاقے کا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ جازب کہیں فرنٹ فوٹ پر آیا ہے یا کہیں میں نے ڈور ٹو ڈور کمپین کیا ہے۔ یہ میں اور میرا موبائل جانتا ہے کہ میں نے گھر بیٹھ کر کیا کیا ہے۔ ہمارا علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان میں گیلانی ٹاؤن، طارق آباد، موچی وانڈا، مفت پورا، پورڑ والی بستی، انجم آباد، یہ بڑے پرامن علاقے ہیں، اور یہاں جو سیاست کی جاتی ہے یہ بڑی شائستگی سے کی جاتی ہے، کسی سے دل آزاری نہیں کی جاتی، کسی کا دل نہیں دکھایا جاتا۔ حتیٰ کہ جب پہلے الیکشن یہاں ہوا کرتے تھے، جس دن الیکشن ختم ہو جاتا تھا وہی علاقہ دوبارہ شیر شکر ہو جاتا تھا، کوئی بھی ایسی گلے گمانیاں یا کوئی ایسی دشمنداریاں نہیں پھیلائی جاتی تھی۔ لیکن میں حیران ہوں، یہ پہلا الیکشن میں دیکھ رہا ہوں جہاں پر لوگوں کو بہت دھمکیاں بھی دلوائی گئی سرکاری طور پر،
और वज़ीर आला साहब के हम भी सब वोटर हैं। ये नाज़िम ठहरे हैं, ये ठहरे वर्कर हैं, इसको कौन नहीं जानता, इसको कौन नहीं जानता। कितने अरसा हो गया इनको, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है और मेरा भी। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ हमारी दिलदारी हुई है वो ये थी कि वज़ीर आला साहब का वो जो नाम निहाद PS बने हुए हैं गुलजमान साहब, उनको नहीं चाहिए थी वो हरगिज़ के वो किसी भी इलाकाई सियासत में दखल अंदाजी करें। दोनों तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर लड़ रहे हैं। कभी हमें कहा जाता है कि ये लोटे हैं, कभी हमें कहा जाता है कि ये बिक गए थे, तो बिक गए थे तो फिर आज भी बिक जाते। कोई वीगो डालों पर बिक जाता, तो किसी को कहा गया कि हम 5-5 लाख का वोट भी ले सकते हैं। कोई नौकरियों के झांसों पर बिक जाता, लेकिन अल्लाह पाक का वो करम है, ये गरीब आवाम है। मैं आपको अपने फौसलों को तारुफ कराता हूँ। ये लड़का छोटा सा दुकानदार है, मेरे ख्याल में इसकी 80,000 से ज़्यादा दुकानदारी नहीं होगी। ये प्लम्बर का काम करता है। आज जिसने वीगो डालो को नाम निहाद PS गुलजमान साहब को जिस तरीके से शिकस्त दी है, जब भी तारा जान सर जब भी तारा जान सर अली तारा जान सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ उनको कि इस गरीब आवाम ने जिस तरीके से इस चकाचौंध को ठुकराया है, तो ये इनकी इस डल्टी और गलीज सियासत में वो ज़ोरदार तमाचा है कि ये अगली बार बहुत बार सोच कर आएंगे यहाँ पर कि हमने आवाम को किस तरीके से झांसे, धोखे और पैसों की सियासत और वीगो डालों की सियासत दिखाई है। आज साइकिल चिंची वाले हार पहन कर ठहरे हुए हैं। आपको समझ आनी चाहिए ये गयूर आवाम का इलाका है, ये कोई ऐसा मफादाती इलाका नहीं है जो आपको 2 दिन में आके सर पर बिठाएंगे। ये खिदमतदारों का इलाका है, जिन्होंने हमेशा खिदमत को प्रेफर किया है, खिदमत से वोट लिया है और आवाम की दुआ से वोट लिया है। तो मेरी तरफ से आप लोग को ये बहुत बड़ी वार्निंग है, अगली बार किसी अच्छे उस्ताद से सीख करें। ये वो लोग हैं, लियाकत साहब भी मौजूद है, वलीद खान भी मौजूद है। ये वो लोग हैं जब मुश्किल वक्त में बिलों में नहीं छुपे, बल्कि जिस तरीके भी सीधा, चाहे डिजिटल कैंपेन में थी या किसी न किसी तरीके से अपने पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, 2 राय नहीं है। ये जो सियासी हरीफ है इनका दूसरा मुखालिफ, वो भी PTI से इनका ताल्लुक रखता है, लेकिन सरकारी वसाइल के साथ हमने खुद देखा कि किसी हद से भी ज़्यादा जो है उनको सपोर्ट किया गया। ये वो लोग हैं कि किसान काउंसलर, ये यूथ का दोनों देख लें, इंतहाई गरीब तबके से है, लेकिन आज उन्होंने जो वोट लिया है ये सिर्फ अली अमीन गंडापुर का, किसी और का नहीं है, ओरिजिनली का है। तो यही है। सर, पैनल में आपके साथ कौन कौन शामिल थे, ये आप ये बता दें। मेरे साथ हमारे किसान काउंसलर पर जनाब असलम साहब थे, जिनका व्हील चेयर निशान था, और हमारे यूथ काउंसलर पर थे हमारे मोहम्मद बिलाल साहब, जिनका विकेट निशान था। हमारे ये 2 काउंसलर जीते हैं और उनके 2 काउंसलर जो थे वो, बल्कि 2 ग्रुप लड़ रहे थे, वो 2 नाम से शिकस्त पास हुए। क्या नाम है उनका भी बता दें ताकि कुछ लोग अननोन होते। हमारे इंजीनियर मुनीर साहब हैं, जिनका रेडियो निशान था, जो इनसे असलम भाई से आ रहे हैं, और दूसरी तरफ से जिन्होंने मलका का निशान लिया था इस आस पे कि हमारी कारकर्दगी मलका की आड़ तले छुप जाएगी, वो भी नहीं छुप सकती। लियाकत साहब, कुछ आवाम का भी आप शुक्रिया अदा करेंगे आखिर में, पूरी दिन में आपने भी तगदो की। बिल्कुल जी, ये सब दोस्तों ने मेहनत की है जी, ठीक है। एक हमारे छोटे बच्चे से लेकर ना बुजुर्गों तक, और रात हम गए थे कई कैंपेन पे, ठीक है, मैं इनके पीछे चल रहा था, ये हमारे आगे थे, तो मैं गया था, ये एक पाँव से ये चल नहीं सकता, ठीक है, ये पम्फलेट बांट रहा था उधर। क्या बात है, ठीक है। तो ऐसे बंदू को ये डंडे के साथ ऐसे बंदू, ठीक है, ये ऐसे बंदू की जीत है। ये अब आप खुद देख लें कि बुजुर्ग जिसके अपने डंडे के ऊपर जोर पे, और उन्हें अपने पम्फलेट इसी तरीके से बांटे गए, कोई शक नहीं है। क्या पैनल बताए, ऐसे कैंपेन कर रहे थे, हम इनके पीछे देख रहे थे, ठीक है। तो ये आगे चल रहे थे, हमें पता चल रहा है कि ये वहाँ सब आए हैं, इधर कैंपेन करके गए हैं। आखिर में कामयाब उससे भी गुफ्तगू करेंगे कुछ, क्योंकि जीते हैं ताकि आवाम के नाम ये पैगाम दे, और जो लोगों की उम्मीदें हैं, इंशाअल्लाह लोगों ने मेहनत की है और मुझे जितवाया है, तो इंशाअल्लाह मैं आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। पहले भी अपने मोहल्ले के लिए जीतूं हारूं काम करूंगा, और काम करने का शौक है और काम करता रहूंगा, और अब जीते हैं तो इंशाअल्लाह काम करेंगे और जिन जान से करेंगे, और अपने मोहल्ले के लिए खड़े हैं। मोची वांडा गिलानी टाउन मुफ्त पूरा उतार के बाद के लिए अपनी
जान भी देने के लिए कहीं घबराएंगे। ये जज्बा होता है, ये जज्बा होता है। अब मेरे साथ ये ना किसान कौंसलर भी मौजूद है, मोहम्मद असलम साहब, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह आवाम ने, इलाके वाले लोगों ने जिस तरह भरपूर एतमाद हम पे किया, इंशाल्लाह इनके एतमाद पे हम भी पूरा उतरेंगे। ठीक हो, और इंशाल्लाह जो हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे, और जो सरकार से लेना होगा वो सरकार से लेंगे। ठीक हो गया। और उसमें हम अपने नाज़िम जो है जाज़िब नाज़िम साहब, वली मोहम्मद जान और जनाब लियाकत मलिक साहब और जो दूसरे सीनियर हमारे वो कारकुन हैं, उनके साथ मिल के जुल के जो चीज़ हमसे हासिल होगी इंशाल्लाह इलाके और आवाम के लिए ज़रूर लेंगे। और जिस तरह उन्होंने हम पे एतमाद किया है और जिस तरह हमारा उन्होंने यानी कि साथ दिया है, बुज़ुर्गों ने, भाइयों ने, बहनों ने, बेटियों ने, और जिस तरह हमारे भाई है सुहेल हसन है, वली मामा है, और यासिर शहजाद हैं, आमिर शहजाद हैं, इन तमाम लोगों ने भरपूर साथ दिया है। एक गरीब को उठा के ज़मीन से आसमान पर बिठाया। क्या बात है। ठीक है जी। ये अच्छा जाज़िब साहब, ये बता दें कि आप तो वैसे भी माशाल्लाह नाम आपका है और एतमाद का वोट ही आज आपको मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बता दें इस यूथ के लिए, किसान के लिए कोई काम के लिए भी कोई जोर लगाएंगे या ऐसा ना हो ये मायूस ना हो जाए और फिर बैठ जाए आगे के लिए ना हो? आपके साथ सीनियर भी और भी ठहरे हैं, वली मामा भी। अब तक जो बल्दियाती निज़ाम चल रहा है पौने 3 साल से, ठीक है। तो हमें अभी तक किसी किस्म के कोई डेवलपमेंट के फंड नहीं दिए गए। अच्छा, अभी ये- तक कुछ ये भी। तो मायूस है। ठीक है, तो इसके बाद भी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब वज़ीर आला साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई हुई है कि विलेज कौंसल लेवल और नेबरहुड कौंसल लेवल पर हम फंड्स देंगे। तो इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ हम सब मिलकर जो भी हमारे पास फंड्स आएंगे वो इलाके की फलाह बहबूद के लिए इंशाल्लाह करेंगे। ये जो वोट मिला है इनके मुताबिक ये टोटल अली अमीन गंडापुर का है और तहरीक इंसाफ का है। और आज जो है हमने दिखाया मुखालफिन को भी और प्रो पीटीआई का भी दिखाया कि हमने किस तरीके से आपने जीता। एक यूथ काउंसलर का भी आपने देखा कि जो कि यूथ से आया है और दूसरा किसान काउंसलर है। खुद आपने देखा गरीब लोग हैं, गरीब तबके से हैं, लेकिन जिस जुनून से और जिस ताकत से वो लड़े हैं और जिस तरीके से उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन अब ये सवाल बनता है कि इनको क्या फ़ंड दिया जाएगा ताकि लोग ये उम्मीदों पर ये पूरा उतर सकें। ये आपके ऊपर है अली अमीन गंडापुर साहब कि आप इनको काम करने देते हैं और आवाम की खातिर या नहीं करने देते। बाकी सब खैरियत है। इसके साथ में दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।